نتباهوا وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. Hope you all are doing good, inshallah, bidnillah. It's good to, I can't say see you all, but good to be with you all once again for the hadith class. Inshallah, today we'll be doing hadith number 18, Imam Nawawi, the 40 hadiths of Imam Nawawi, and today we are doing hadith number 18. So I hope everybody is ready for this hadith. It's equally important. As we said, these are the chosen hadiths by Imam Nawawi, 40 hadiths, which are also known as the jewels of the hadith and most important. So let's come up with the 18th hadith, which I have posted in the group. Just let me open the hadith, please. Yes. Hadith number 18, on the authority of Abu Dar, Jundub ibn Junada and Abu Abdurrahman Muad ibn Jabbal, from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who said, fear Allah wherever you are and follow up a bad deed with a good deed and it will wipe it out, and behave towards the people with a good behavior. Recorded by At-Tirmidhi, who said it is a Hasan hadith, and in some of the copies it is Hasan Sahih. So it is not from Bukhari and Muslim, but it is a Hasan hadith. So we are going to do this hadith today, inshallah. And as said, as we always do, we will divide this hadith into three parts. First will be the taqwa. Second will be the follow-up of bad hadith, the bad deeds with the people. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, fear Allah wherever you are. That will be our first part, fear Allah wherever you are. Second, and follow up a bad deed with a good deed and it will wipe it out. Third, and behave towards the people with a good behavior. So we'll divide this into three parts and we will cover it inshallah within an hour. And first thing is the taqwa. So we have already done taqwa in different classes, but again we will do taqwa now. Those who have already attended taqwa, so it will be a recap for them, and those who have no understanding of taqwa, inshallah, they will build up a understanding of taqwa. I think what's our English hogi? Sorry. Okay, so taqwa. What is taqwa? जैसे हम जानते हैं, taqwa comes from the root word waqaya, waw qafiya, waqaya या waw qaf, वाव काफ हमजा भी आता है, वकाया. तो वकाया का मतलब होता है a protection. It is something to protect ourselves, a shield, something to protect ourselves. तो तकवा उसी रूट वर्ड से आता है और इसी का मतलब, तकवा का मतलब यही होता है कि to protect ourselves, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें. तो इसके डिफरेंट क्या कहते हैं, translation hai. One is to protect ourselves and the next is to, just 1 minute, it's to protect ourselves and the next is fear of Allah. Isko hum aise bhi translate karte hain as the fear of Allah. So either the fear of Allah or a protection. It is our protection. It's not a hadith, but it is a call. Hazrat Umar radiallahu anhu once asked his companion, आपके साथी से उन्होंने पूछा कि what is तकवा. उबई बिन काब, आपके साथी उबई बिन काब से पूछा कि तकवा क्या है. तो उबई बिन काब ने उमर रदियल्लाहु अन्हु को सिखाया कि तकवा क्या होता है. आपने कहा, उबई बिन काब ने कहा कि अगर आप एक झाड़ियों में से जा रहे हो तो आप कैसे जाओगे. हजरत उमर से पूछा कि आप कैसे जाओगे, अगर आप एक कांटेदार झाड़ियों के रास्ते में से गुजर रहे हो तो आप कैसे जाओगे. तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वो अपने कपड़ों को सिमट कर वहां से निकलेंगे. तो काब बिन मलिक रदियल्लाहु अन्हु
तो उन्होंने कहा कि तकवा भी वैसे ही होता है कि हम अपने आप को बचाकर, अपने कपड़ों को बचाकर, अपने चादर को बचाकर, जब झाड़ियों में से हम जाते हैं तो अपने आप को सिमट कर, स्क्वीज योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योर क्लोथिंग एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। तो अपने आप को बचाकर हम वहां से निकलते हैं। सो दैट इज तकवा। तो हमें भी यही करना है कि तकवा इख्तियार करना है, अडॉप्ट द तकवा, सो दैट हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकें, हर एक को प्रोटेक्ट करके रख सकें। So now where does this fear of Allah comes in? Because taqwa, इसको जो translate होता है the fear of Allah, there are around 11 types of fear mentioned in the Quran. Of them one is taqwa. So fear, जब हम थोड़ा सा fear के ऊपर लें तो fear is of two types, constructive and destructive fear. They are of two types, constructive and destructive fear. And there is a real or imaginary fear, or physical and psychological fear, but we will not go there because फिर हम fear में enter हो जाएंगे, but we will just take only the constructive and the destructive fear. So constructive fear is helping, constructive fear helps in calculating mindfulness, hope, politeness, humility, discipline, etc. to improve personalities and authorities. तो constructive fear से हमारी अपनी personality improve होती है. When we develop constructive fear towards Allah subhanahu wa ta'ala, we tend to build our personalities and achievements in line with the deen. तो जब हम constructive fear, Allah subhanahu wa ta'ala की तरफ हम constructive fear रखते हैं तो हम अपनी personality और अपने achievements दिखाते हैं दीन में. कैसे? I will tell you. So that is constructive fear, कि जहाँ पर हम हमारी growth है. A constructive fear where there is a growth in us. Okay, there is a growth in us. But compared to the constructive fear, which I said the other fear is the destructive fear. It's 1 minute. Okay, the other is the destructive fear. So destructive fear में क्या होता है? Causes regression. The destructive fear causes regression, withdrawal, distancing. This generate anger, hate, jealousy, anxiety, tension, stress. So this fears need to be conquered. So this is the harmful effect of the fear. The दूसरा destructive fear is the harmful fear. It will cause us to regress, distancing, withdrawal. The other things, it generates anger, hate, jealousy. We don't need right now, so I will avoid that. And if you want to know more in detail about the fear, do watch my audio. It's available on YouTube. Yes, Dr. Nasreen ने YouTube पर डाउनलोड किया था about fear and grief. So fear के जो है ऑडियो, उसमें सारा कुछ ये मेंशन किया गया. I have already discussed this in detail in that audio. So जिसने भी नहीं सुना है तो वो वहां जाकर सुन ले. उसका लिंक, do you have it, Nasreen? Do you have it right now? उसका लिंक अभी है? Yes, Dr. Safina hai. I will try to post it inshallah in the group. I'll repost it inshallah. Yeah. So she'll post it in the group. If not, you can ask your in charges, they will give you. All right. So that's about right now we need, because taqwa is related with fear, so we need to understand what which exactly the fear is. As we said, it is the constructive fear and the destructive fear. दो fear है. Constructive fear where we see a growth in us, जहाँ पर हम improve होते हैं, और destructive fear जहाँ पर हमारे अंदर regression, withdrawal, distancing, हम अपने आप से दूर होते हैं. Okay, so there are two types of fear. So where does this taqwa comes in? And as I said, we have 11 types of fear in the Quran. So let me give just roughly few example of constructive fear, which is taqwa and khashya, rahaba, wajal, and destructive fear. We have khawf, hazara, awjasa. These are types of destructive fear. And rahaba, wajal, khashya, ra'b, these are positive fears. And taqwa is a positive fear. So we take the positive fear. Now, जैसे मैंने कहा कि positive fear से हमें growth होती है.
अब समझ लें कि हमारे साथ अक्सर यही होता है, इसीलिए हम अल्लाह से दूर भागते हैं। डिस्ट्रक्टिव फियर कॉजेस रिग्रेशन, विड्रॉल, डिस्टेंसिंग। तो आपको याद होगा जब हम, आई डोंट नो विद एवरीबॉडी, बट आई नो कि जब मैं छोटी थी एंड आई वाज थॉट अबाउट अल्लाह सुब्हानहू ताला, सो आई वाज थॉट अबाउट डोंट डू दिस, he will harm you, don't do that, he will punish you, don't do this, you will be harmed, आग लग जाएगी, you will be harmed, दोज़ख की आग लगेगी, ये मत करो ये होगा, ये मत करो ये होगा, अल्लाह सुब्हानहू ताला नाराज होंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला ये होंगे। दिस इज ऑल आई गॉट टू हियर। Do good things, नमाज पढ़ो, all good, do good deeds, he will be happy, but do all these things, he will be angry। तो हम बच्चों को मोहब्बत नहीं सिखाते अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए, हम उनके दिलों में डर बिठाते हैं। कौन सा डर बिठा रहे हैं हम? डिस्ट्रक्टिव फियर, खौफ बिठा रहे हैं हम। तकवा नहीं बिठा रहे हैं बच्चों के दिल में, हम खौफ बिठा रहे हैं। हज़रा औजसा is fear due to hearing some news, so it's almost that Allah की ये news, but no, it doesn't come here, but it is खौफ, perceived danger in front of you, so it is खौफ। and hazara, try and escape from something, तो हम वो चाहते हैं कि हम इससे बच जाएं। तो हम बच्चों को ज्यादातर खौफ डलवा रहे हैं बच्चों के दिलों में अल्लाह के अगेंस्ट में, कि ये नहीं करो, he will punish, don't do such and such thing, he will be punished। शबाना, माइक म्यूट प्लीज। तो हम यही चीजें डर बिठाते हैं। whereas अल्लाह सुब्हानहू ताला से अडॉप्ट तकवा, अल्लाह सुब्हानहू ताला से के तकवा अडॉप्ट करो। यास्मीन मोहम्मद, माइक म्यूट प्लीज। कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से के तकवा अडॉप्ट करो, एंड दैट इज एज आई सेड पॉजिटिव फियर। तो पॉजिटिव फियर जब हमारे अंदर होता है, जब हम अल्लाह सुब्हानहू ताला को बच्चों को इंट्रोड्यूस करें, उनके मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में डालें, तब जाकर वो तकवा पैदा होता है। विदाउट मोहब्बत तकवा नहीं पैदा होता। बच्चे माँ बाप से दो किस्म से डर सकते हैं। एक वो जब पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, सिर्फ उनको लकड़ी की मार बताते हैं और उनसे मोहब्बत नहीं करते, बस सिर्फ उनकी पिटाई करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो डिस्ट्रक्टिव फियर होगा। वो जैसे ही अपने पेरेंट्स को देखेंगे तो वहां से भाग जाएंगे, दैट इज डिस्ट्रक्टिव फियर। लेकिन माँ बाप जब मोहब्बत करते हैं, यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द पेरेंट्स, वो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। तो बच्चे जब माँ बाप बच्चों के दिलों में जब माँ बाप के लिए मोहब्बत होती है, दे सी कि हाउ केयरिंग द पेरेंट्स आर, हाउ लविंग दे आर, हाउ मच कंफर्ट दे गिव, उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन, हर चीज का वो ख्याल रखते हैं। तो फिर ये चीज मोहब्बत, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा होती है माँ बाप के लिए, और वो नहीं चाहते कि उनके माँ बाप नाराज हो जाओ उनके लिए। तो अगर कभी वो बुरा कर दें और वो बच्चे के माँ बाप कह दें आई एम एंग्री विथ यू, तो वो तो फिर रोना शुरू कर देंगे कि उनके पेरेंट एंग्री हो गए बोलकर। खाली यही बता दे आई एम नॉट हैप्पी बोल दें आप खाली, तो देखें उनका फेस कैसा मुरझा जाता है, और फिर वो इमीडिएटली ऐसी कोशिश करते हैं कि आपको खुश करने के लिए, बिकॉज उनको आपकी खुशी ज्यादा जरूरी है बच्चों को। तो ये है मोहब्बत। तो हम बच्चों के दिलों में अल्लाह के लिए मोहब्बत पैदा करें, बच्चों को बताएं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, बच्चों को थैंक यू बोलना सिखाए, बच्चों को अल्लाह से रोज बात करना सिखाए, बच्चों को आई लव यू कहना सिखाएं अल्लाह सुब्हानहू ताला से, और खुद भी यही चीज प्रैक्टिस करें। जाकर अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी, बच्चे अल्लाह को समझेंगे कि what actually Allah subhanahu wa ta'ala is and how important Allah subhanahu wa ta'ala is and what we should be doing, we should be bonding with Allah subhanahu wa ta'ala। ये नहीं कि आप उनके दिलों में अल्लाह के लिए खौफ पैदा करें और वो अल्लाह से दूर जाना रखें कि नहीं हमको दूर ही रखना है अल्लाह को, बिकॉज अल्लाह subhanahu wa ta'ala फिर हमें पनिश करेंगे। तो दैट इज द डिस्ट्रक्टिव फियर। जब डिस्ट्रक्टिव फियर हमारे अंदर होता है तो वी टेंड टू रिग्रेस, विड्रॉ, डिस्टेंस कर देते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला से। लेकिन जब हमारे अंदर पॉजिटिव फियर आ जाता है, कंस्ट्रक्टिव फियर आ जाता है, वी कम क्लोज टू अल्लाह सुब्हानहू ताला, और इट हेल्प्स अस टू ग्रो अप, it helps us in our growth in a positive manner। तो हम कोई भी वो काम नहीं करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू ताला को नापसंद हो, बिकॉज हम नहीं चाहते अल्लाह सुब्हानहू ताला को नापसंद करें।
we don't want to displease him. अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम डिस्प्लीस नहीं करना चाहते, तो हम हर वो काम करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राजी हो जाए, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे प्लीज हो जाए, तो हर वो काम हम करना पसंद करेंगे ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा हमको मिले, so that he is pleased with us. So that is how we build our character. अब इस वक्त आप और हम सब यहाँ पर मिल बैठे हैं to study this hadith. What is the reason? Only to please Allah subhanahu wa ta'ala, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन से सीख सके और इसके ऊपर हम अमल कर सके, ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब आ सके और अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश कर सके, राजी कर सके. This is the main मकसद. हमें खौफ नहीं है, हम डर के नहीं आए हैं कि अगर हम ये क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पनिश कर देंगे, इसलिए नहीं आए हैं. हम तकवे से आए हैं. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि हम तकवे से आए हैं, ये क्लास अटेंड करने आए हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ तकवा, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ खौफ. तो बच्चों के अंदर और खुद अपने अंदर भी खौफ ना पैदा करें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, बट तकवा पैदा करें. ऑलराइट, सो दिस इज द positive fear, which is taqwa, is a positive fear. So what we need to do is have the positive fear and not the negative fear. और आज का हमारा टॉपिक यही है about fear, fearing Allah subhanahu wa ta'ala, which is to have a positive fear, and that is taqwa. All right, now taqwa is associated with iman. Iman is the belief in the belief that Allah subhanahu wa ta'ala exists. जितना ज्यादा हमारा पक्का बिलीव होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जिस्ट होंगे, उतनी ज्यादा हमारी मोहब्बत होगी और उतना ही हमारा तकवा बढ़ेगा. So we have to believe that our belief system should be very strong. अकीदा हमारा बहुत ज्यादा फर्म होना चाहिए, फर्म अकीदा होना चाहिए. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala do exist, and yes, he care for us, and we and I love him. The मोहब्बत हमारे अंदर होनी चाहिए. So that will be the basis of our iman. तो जब ईमान पैदा होगा तभी तकवा भी पैदा होगा. तकवा एंड ईमान यूजुअली एक ही होते हैं, लेकिन जब हम यानी उसको मोर कंसाइज करना हो तो हम दोनों को डिफरेंट करते हैं, ईमान एंड तकवा. अदरवाइज ईमान एंड तकवा गो टुगेदर unless we want to separate it out. तो यहाँ पर we want to separate it out to understand what is iman and what is taqwa. So do remember, when the iman increases, our taqwa increases, and when the iman decreases, our taqwa will decrease. हमारे अंदर ईमान बढ़ेगा तो हमारा तकवा भी बढ़ेगा, हमारे अंदर ईमान गिर जाएगा तो हमारा तकवा भी गिर जाएगा. तो ईमान एंड तकवा are directly proportional with each other. जैसे ईमान बढ़ेगा तकवा भी बढ़ेगा. जितना हम फर्म होंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला डू एग्जिस्ट एंड आई डू लव अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा तकवा होगा. आई डोंट वांट टू डिस्प्लीज अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो हमारा तकवा भी स्ट्रॉन्ग होगा. सो तकवा लाइक ईमान, हम जानते हैं ईमान इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, तो ठीक उसी तरीके से our taqwa will increase and our taqwa will decrease. All right, next we come to the importance and the benefits of the taqwa, which I have already posted in the group. For your convenience, I have posted on the group. If you can open them, it's good. Let me open my page. Okay, the importance and blessings and benefits of taqwa. This I have taken from my book, Commentary of the 40 Hadiths of Nawawi, which we had in our Islamic Online University, Hadith 102. Please, we are not supposed to circulate this with anybody, or तो इसको आप please बाद में delete कर दीजिएगा. This is a copyright. All right, this is a copyright and we cannot share it with anybody, so please delete it. अभी आपके reference के लिए मैंने post किया है, आप उसके notes ले लें और उसको please delete कर दें. Don't forward it to anybody. आप देखें वहां पर है इसका copy mention किया गया, it's Islamic Online, नीचे भी होगा, it's not mentioned, but it is a copyright, so please, we are not supposed to share it with anybody, so please delete it after making notes. And okay, the importance and blessings and benefits of taqwa. Or taqwa, it is mentioned throughout the Quran.
जगह जगह मेंशन किया गया है कि पीपल शुड अडॉप्ट तकवा। आपको नेक अमल करना हो तो यू हैव टू हैव तकवा। बिना तकवे के हम कोई भी नेक अमल नहीं कर सकते। हम इसीलिए दिस इज द फियर, इट इज अ पॉजिटिव फियर। वी डोंट वांट टू डिस्प्लीज अल्लाह, तो इसीलिए हम कोई भी बुरी चीज नहीं करेंगे। वी वांट टू प्लीज अल्लाह, इसीलिए हम सारी अच्छी चीजें करेंगे। और कुरान में ही सूरह बकरा में स्टार्टिंग में ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इट इज अ गाइडेंस फॉर अ मुत्तकी। स्टार्टिंग में ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि कुरान सिर्फ एक मुत्तकी के लिए है। यानी जब तक कि आपके दिल के अंदर तकवा ना होगा, कुरान आपको फायदेमंद नहीं देगी। कुरान आपके लिए बेनिफिशियल उसी वक्त है इफ यू हैव तकवा इन योर हार्ट। तो मुत्तकी इज वन हु हैज तकवा। आप और हम मुत्तकी है बिकॉज वी हैव दैट तकवा इन आवर हार्ट्स। तो कई आयतें आपको मिलेंगी तकवे के ऊपर, और हर जगह यही मेंशन किया होगा कि अगर आपको ये साले अमल करना है then the first thing you have to have is taqwa, adopt taqwa. The reading of the Quran will demonstrate the great importance of taqwa, how pleasing it is to Allah and how Allah responds to a muttaqi. Note in particular the following blessings and benefits from taqwa. Guidance from the Quran is received by the muttaqi. तो guidance, this is ये ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यही आयत है। तो हमारे गाइडेंस, कुरान की गाइडेंस हमें मिलेगी अगर हम तकवा इख्तियार करेंगे। हाउ? यहाँ पर कुरान में क्या होता है? प्रोहिबिशंस एंड कमांडमेंट्स। तो प्रोहिबिशंस हम उस वक्त रुक पाएंगे अगर हम अल्लाह को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते, तो वी विल नॉट डू दैट। हम अपने नफ्स से फाइट करेंगे और विल गो अगेंस्ट आवर विशेस एंड वी विल नॉट डू दैट, चाहे हमें कितनी भी पसंद हो जाए, लेकिन हम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। सिंपल सी हम लेडीज के लिए आईब्रोज है, कितनी हमको पसंद आती है कि आईब्रोज करें तो हाउ ब्यूटीफुल वी विल लुक, बट वी विल नॉट डू इट बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं पसंद। तो वी विल लीव डूइंग आईब्रोज only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and this we can do only if we have taqwa. जब हम अल्लाह को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते, हमारे दिल में तकवा है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को डिस्प्लीज करें, तो वी गिव अप आवर विशेस, आवर डिजायर, हम अपने डिजायर को छोड़ दें तब फॉर दिस सेक। So that is how we will be guided. So that is one. Allah's special closeness, help and support comes those who have taqwa. Inna Allaha ma'allazina taqaw. तो जिनके दिलों में तकवा होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद करते हैं। ओके, हेल्प एंड सपोर्ट कम्स टू दोस हु हैव तकवा। तो मुत्तकी की ही मदद करेंगे, बिकॉज मुत्तकी अल्लाह के लिए अपने आप को हर बुरी चीजों से दूर रखता है और हर नेक कामों से करीब रखता है। तो तब अल्लाह सुब्हानहू तआला भी हमसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह हमें सपोर्ट करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। He helps and support. So if we love Allah subhanahu wa ta'ala and if we have that fear, a positive fear in us, taqwa हमारे दिल में हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें प्रोटेक्ट कर लेंगे। Allah gives his loyalty, protection and support to a muttaqi. Again same thing, protection to a muttaqi. Allah loves the muttaqi. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. See, he loves the muttaqi. Allah gives a muttaqi a criterion or signs to distinguish right from wrong. See, he helps us. He helps us. He guides us. एक मुत्तकी को गाइड करते हैं, उसको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम कभी गलत काम करने जाओ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें गाइड करते हैं, नो दैट इज रॉन्ग, डू दिस, ये करेक्ट है। किसको हेल्प करते हैं? जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जिसके दिल में तकवा होता है। तो जिसके अंदर तकवा होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको मदद करते हैं, और जिसके अंदर तकवा नहीं होता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 1 minute please. Yes, 6. Allah provides beneficial solutions and way out from difficulties and confusions for those who have taqwa. Again, गाइड भी करते हैं और सॉल्यूशंस भी देते हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन। मखरजन इज अ वे आउट, कोई ट्रैप में से बाहर निकलना, मखरजन। सो मखरजन किसके लिए है? सिर्फ उनके लिए जो तकवा रखते हैं। वमन यत्तक़िल्लाह, और जो अल्लाह से डरते हैं। वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरते हैं। अगेन तकवा यहाँ पे आया है, तो जो अल्लाह से डरते हैं, खौफ नहीं खाते बट तकवा रखते हैं, दैट इज पॉजिटिव फियर। अल्लाह से मोहब्बत कर कर अल्लाह से डरते हैं कि अल्लाह को नाराज ना करना है।
अल्लाह को नाराज ना करें। तो ऐसे लोगों के अल्लाह सुब्हानहू व तआला रास्ते बना देते हैं। मखरजन इस रास्ते बना देना। Allah provides for the muttaqi from avenues that they did not even imagine. तो ऐसे जगह से वो निकाल लेते हैं मुत्तकी को जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रास्ता मिलेगा। सूरह तलाक आयत नंबर 2, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और मखरजन बाहर निकाल लेते हैं और रिस्क अता करते हैं जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ से रिस्क आएगा। So he is with us constantly. किसके साथ? मुत्तकी के साथ। प्रोटेक्शन में, प्रोवाइड करने में, मोहब्बत करने में। He is constantly with us. So now I hope you understand the importance of taqwa. 9 and 10, Allah forgives the sins of a muttaqi. See, गलती भी होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ कर देते हैं। He forgives the sin of a muttaqi and makes the reward greater. और हमारे सवाब को बढ़ा देते हैं। Allah only accepts deeds from those who have taqwa. If a deed is not done with taqwa, it will not be accepted. That is इखलास के साथ। हम जब इखलास भी क्या जाता है, खालिस अल्लाह की खातिर हम कर रहे हैं, तो जिनके पास तकवा होगा वही खालिस अल्लाह की खातिर करेंगे। जिनके पास तकवा नहीं होगा तो वो फिर लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए करेंगे। फॉर देयर ओन बेनिफिट दे विल बी डूइंग इट। तो तकवा जिनके घर में, जिनके दिलों में तकवा होता है वो इखलास दिखाते हैं, उनकी नीयत में इखलास होता है। सो इफ यू हैव तकवा यू विल हैव इखलास इन योर नीयत। तो यहाँ पर which one was that? Yes, ayat number 11 point. So 11th point it is innama yataqabbalullahu minal muttaqin. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करते हैं एक मुत्तकी से। तो मुत्तकी के दिल में तकवा हो तब उसकी नीयत फिर खालिस अल्लाह के लिए होती है। इखलास से वो काम करता है। Prosperity and success comes to muttaqin. See how beautiful. Prosperity and success. वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। फला पाएंगे। That is my favorite. फला पाएंगे। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। जिसने भी तकवा इख्तियार किया वो फला पा गए। लअल्लकुम, perhaps. Of course, there is always la'allakum, perhaps. We'll do that later. But जो मुत्तकी होते हैं तो उम्मीद है कि वो फला पाएंगे। It is not definite because everything depends upon Allah subhanahu wa ta'ala. तो लेकिन of course जो मुत्तकी होते हैं वो फला पाएंगे। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो वो फला पाएंगे। फला is the success, the final success in this world as well as the next world. The prosperity, peace. And the major thing is the peace. We will be given the peace, the success in the form of peace. यहाँ पर हर एक इंसान को ultimately peace चाहिए होता है। So the criteria for success in our Islam is peace. Criteria for success in the world is money. But they think it is money and fame. They think the success is in terms of money and fame. Lekin it is not in terms of money and fame. Agar money or fame success hota, to well-known people, they wouldn't have committed suicide. So they don't understand the success is not in the form of wealth and fame, but it is peace. So true success is in the form of peace. And ये कौन पा सकता है? ये एक मुत्तकी को मिलेगा। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फला पाओ। तो तुम्हारे अंदर नफ्स मुतमइन्ना आए, तुम्हारी रूह नफ्स मुतमइन्ना हो जाए। और जब नफ्स मुतमइन्ना हो जाए तो फिर इर्जी इला रब्बी, तो अल्लाह के पास, अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। सूरह फजर की आयत में अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। That is the success. और इस दुनिया में भी सक्सेस और आखिरत में भी सक्सेस। 13th, Allah helps glad tidings in both this life and the hereafter to a muttaqi, and that in fact is the greatest of rewards. Okay, the same thing which I have just mentioned. 13th, and where is the 14th?
wal fawzul azim, that is the biggest success. The muttaqi will enter into paradise. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun naim. So for a muttaqi it is jannatun naim, the delights of their Lord. And the muttaqi will spare the hellfire, और उसको दोज़ख की आग से बचा लिया जाएगा. The muttaqi will have the special blessings of being seated in the seat of sincerity near to Allah subhanahu wa ta'ala. The muttaqi will be given the honor of being above the rest of the creation on the day of judgment. How beautiful. We will be given the honor of being above the rest of the creation in the day of judgment. All right, so those are the points for a muttaqi. So there were such beautiful points, so I thought I will share it with you all. But please do remember to delete them. Okay, ayat number 18. All fear of punishment and grief will be removed from the muttaqi. So, فَمَتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَمَتَّقَى وَأَصْلَحَ, जो तक़वा इख्तियार करे और सालिह अमल करे. जो तक़वा इख्तियार करे और सालिह अमल करे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. सूरह आराफ आयत नंबर 35. So this is another thing कि हमारे अंदर से सारा गम और सारा खौफ और गम निकाल दिया जाएगा if we are a मुत्तक़ी. एब्सोल्युटली, जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम बुरे कामों से दूर होते हैं, नेकियों के करीब होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसे लोगों के दिलों से डर और खौफ निकाल दिया जाता है. तो मुत्तकी के दिल से डर और खौफ निकाल दिया जाता है. डर, खौफ और गम निकाल दिया जाता है. खौफ और गम निकाल दिया जाता है. सीना यहाँ पर आप देखें, तकवा और खौफ ऑपोजिट है. तकवा होगा तो खौफ निकलेगा, you see that? और अगर खौफ होगा तो तकवा नहीं रहेगा. तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या कहा था कि बच्चों के दिलों में खौफ ना बैठाएं. आप खौफ बिठाएंगे तो तकवा नहीं होगा उनके दिलों में. Now this ayat supports that point कि आपके दिलों में, अगर बच्चों के दिलों में हम खौफ बिठा दें तो फिर तकवा नहीं होगा. बच्चों के दिलों में तकवा बिठाएं तो वो अल्लाह से यानी दूर नहीं भागेंगे, खौफ नहीं रखेंगे. डिस्ट्रक्टिव फियर ऑफ डिस्टेंसिंग फ्रॉम अल्लाह नहीं होगा, बल्कि अगर हमारे अंदर तकवा होगा तो हम किसी चीज से नहीं डरेंगे. अल्लाह से हम करीब पहुंचेंगे, अल्लाह से भी नहीं डरेंगे, यानी डर के दूर नहीं भागेंगे, हम अल्लाह से डर कर करीब आएंगे. We will be coming very close to Allah subhanahu wa ta'ala. और हमारे दिलों में किसी किस्म का खौफ नहीं होगा. दूसरों के लिए, किसी के लिए भी हमारे दिल में कोई खौफ नहीं होगा एंड कोई गम नहीं होगा. The best thing. Right, so that is about taqwa. I have to go a little bit fast because half an hour left and we still have to do 2 more topics. तकवा ऐसी टॉपिक है कि इसको आप hours and hours भी ले लें तो नहीं खत्म होगी. तो I'm trying to do it as much as possible within the limited time. The key to taqwa, Ibn Juzay al-Qalbi states that the key to attaining taqwa revolves around 10 matters. कि तकवा हम कैसे अख्तियार करें. If a person takes these matters seriously, the rest should be a true taqwa in his heart, fear of punishment in the hereafter. तो आखिरत के punishment से हम डरें. The fear of punishment in this world, इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पनिश कर सकते हैं, इससे हम डरें. Hope for reward in this world and hope for reward in the hereafter. Fearing the reckoning and accounting of one's deed. ये डर हमें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पकड़ेगा. हमारे अमल, हमारे सारे अमल को चेक करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला, और जो भी बुरे अमल होंगे तो उसके लिए हमारी पकड़ होगी. तो ये डर हमारे पास होनी चाहिए. एक मुत्तकी को हमेशा ये डर होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे बुराइयों को पकड़ेंगे, तो इसलिए बेटर है कि मैं बुराइयां ना रखूं. दोज़ख मैं जानती हूँ कि दोज़ख है, तो अगर मुझसे बुरा हो, मुझसे कुछ भी चीज बुरा हो जाएगा तो फिर मैं दोज़ख में जाना पड़ेगा. इसलिए मैं कोई बुरा काम ना करूं ताकि दोज़ख की आग से महफूज रखूं. तीसरा ये कि अगर मैं नेक काम करूंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जन्नत देंगे. तो जन्नत की तलब, दोज़ख से बचने की आरज़ू, ये दोनों होनी चाहिए. ये दोनों जब हमारे साथ रहेंगे तो हमारे पास तकवा बढ़ेगा और साथ ही साथ दिल में तकवा
जमा रहेगा, दिल में तकवा जमा रहेगा और बढ़ता रहेगा। जितनी ज्यादा हमारा डर होगा आखिरत के लिए, दोज़ख की आग के लिए, उतना ज्यादा हमारे अंदर तकवा बढ़ेगा। और ये डर कि मेरी पकड़ होगी, अगर मैं कुछ भी बुरा कर दूं तो मेरी पकड़ होगी। Feeling shameful that Allah should see oneself performing these that are displeasing to him. तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इतना बुरा काम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें देख रहे हैं और हम इतनी बुरी तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं। जस्ट दिस थॉट कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें देख रहे हैं और हम इतनी बुरी तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं, और आप देखना कि इमीडिएटली हमारी नमाज कितनी अच्छी हो जाती है। इमीडिएटली वी चेंज आवरसेल्व्स। हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें देख रहे हैं। कैसे मैं ऐसी इतनी इतनी तेज नमाज, इतनी खुशू के बगैर नमाज पढ़ूं मैं, तो इमीडिएटली फिर हम अलर्ट हो जाते हैं। Feeling shameful that Allah should see oneself performing deeds that are displeasing to him, being thankful and feeling grateful for all of the bounties that Allah has bestowed on us. तो जब हम ये सारी चीजें याद रखें, अल्लाह को शुक्र अदा करें for all the blessings he has given us, तो फिर हमारे अंदर तकवा बढ़ता है। The true knowledge of reality of Allah, his names and attributes, as Allah says. तो अल्लाह के बारे में पूरा अच्छी तरीके से अल्लाह की पहचान हो हमें, तो हमारे दिलों में अल्लाह के लिए मोहब्बत बढ़ती है। जिसमें कहा कि मोहब्बत के लिए जरूरी है कि हम सामने वाले को पहचाने, तो अल्लाह को हम असल तरीके से पहचाने। कुरान की आयत आती है कि मेरे बंदे मुझे मेरा हक नहीं अदा करते। I literally cried when I read that for the first time कि मेरे बंदे मेरा हक नहीं अदा करते। That means कि हम अल्लाह को ठीक तरीके से पहचानते नहीं है, और जब हम अल्लाह को ठीक तरीके से पहचानते नहीं है तो फिर हम हक कैसे अदा करेंगे अल्लाह का। और अल्लाह कहते हैं कि हम नहीं हक अदा करते। तो वी हैव टू टेक दैट सीरियसली। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए कि हम अल्लाह का हक अदा करें। तो वो पॉसिबल उसी वक्त है जब हम अल्लाह को अच्छी तरीके से पहचाने, अल्लाह से बात करें और अल्लाह के बारे में हम जाने, रिफ्लेक्ट करें, पढ़ाई करें, नॉलेज रखें, so that we understand Allah subhanahu wa ta'ala more better. Those who truly fear Allah among his servants are only the people of knowledge. See, knowledge रखोगे तभी आप अल्लाह को अल्लाह के लिए फियर यानी तकवा पैदा करोगे। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, इबादिहिल उलमाउ, that is scholars, the knowledge people who have knowledge, only they fear Allah subhanahu wa ta'ala. I told you the other word is khasha, तो यहाँ पर वही यूज हुआ है, positive fear, yaksha, which you can take it as taqwa. It is also positive fear. innama yakhshallaha, अल्लाह को वही, अल्लाह से वही लोग डरते हैं, पॉजिटिव फियर, तकवा की तरह पॉजिटिव फियर, तो वही लोग डरते हैं जो नॉलेज रखते हैं। मिन इबादी ही, मेरे बंदों में से, जो उलमाओ, जो स्कॉलर्स हैं। तो जितनी आपकी नॉलेज होगी आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को उतना ज्यादा हक दे पाओगे। Having a great deal of respect for the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, being sincere and truthful in one's love for Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the keys to adopt taqwa. जब हम ये अपने अंदर पैदा करेंगे तो हम तकवा इख्तियार करेंगे। तो जब हम ये सोच लें कि मेरी हर पकड़ होगी, fearing the reckoning and accounting of one's deeds, मेरी पकड़ होगी, तो हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे काम कम करते जाएंगे। इंसान को अगर झूठ बोलने की आदत है, तब उसको याद आएगा कि मेरी पकड़ होगी, मैं जब झूठ बोलूंगी अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे पकड़ेंगे, मुझे सजा देंगे। और फिर साथ ही साथ मैं अल्लाह को कैसे ये देखूंगी, आई मीन कैसे अल्लाह के सामने जाऊंगी। इफ आई कमिट ऑल दीज थिंग्स, आई विल बी शेमफुल ऑफ माई सेल्फ कि या अल्लाह मैं आपकी बंदी हूँ, लेकिन आई कैन नॉट से मैं आपकी बंदी हूँ बिकॉज मैं इतने सारे गुनाह करती हूँ। तो यू फील अशेम ऑफ योर सेल्फ। तो ये चीज हमारे अंदर गिल्ट जब पैदा हो ना, तो हम अपने आप को रोकते हैं, बुराई झूठ बोलने से रोकते हैं। आहिस्ता 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 फिर हम सच्चे बन जाते हैं। वी रिमूव दैट। दैट इज व्हाई आई सेड तकवा हेल्प्स इन आवर ग्रोथ।
हम एक पॉजिटिव तरीके से ग्रोथ होते हैं, हमारे अंदर के सारे बुराइयों को खत्म कर देता है तकवा। that is why it is a shield, it protects us, बुराइयों से दूर कर देता है। we don't want, हम बुराइयों के करीब नहीं जाना चाहते, right? So that is about taqwa in brief. Next we will go to the second part. Just 1 minute. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So next part becomes follow up bad deeds with good deeds. So Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah says, okay, follow up the good deeds, bad deeds with a good deed. अगर बुराई करो तो फिर उसके साथ अच्छाई करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे काम करते जाओ, नो। अगर बाय चांस आपसे बुराई हो जाए तो आप अच्छे काम करें। See again, this is building our personality. हम जितने भी हदीस पढ़ रहे हैं ना, तो this is all are for building our personality, ताकि हम जन्नत हासिल करें, इस दुनिया में भी हमारा फायदा हो और हम आखिरत में भी हमारा फायदा हो। To build our personality. लास्ट हम हदीस हम कौन सी पढ़े थे? जो भी काम करो एहसन तरीके से करो, यहाँ तक कि कत्ल भी करो तो एहसन तरीके से करो। We dealt that in detail कि what is the meaning of कत्ल करो तो भी एहसन तरीके से करो। We have done that. तो बहरहाल it was about एहसन तरीका, the best, the finest method. तो अब मुस्लिम को चाहिए, एक मुसलमान को चाहिए वो एहसन तरीके से रहे, उसकी इबादत में, उसके खुलूक में, उसकी पर्सनालिटी में, हर जगह एहसन तरीका नजर आए, ताकि उस अल्लाह भी खुश हो उससे और उसके साथ जो लोग रहते हैं उनको भी फायदा हो। मुझसे, मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनको फायदा होना चाहिए, तो मेरे अंदर वो एहसन तरीका होना चाहिए। अगर मैं हर काम एहसन तरीके से करूं तो मेरे साथ लोगों को भी फायदा होगा। So that was one of the characteristics which was needed by me. Now next is, यहाँ पर आज की हदीस में हम क्या कर रहे हैं कि जब just recap ये कह सकते हैं कि अल्लाह सब और सारे हदीसों में इतने सारे क्वालिटीज बताया गया है कि एहसन तरीका अपनाओ और बुराइयों से दूर हो, all those characteristics which we have studied in different hadith, उसके लिए क्या चाहिए? You have to have taqwa. तो यहाँ पर it's just like a break and says have taqwa. तकवा इख्तियार करो। जब तुम तकवा इख्तियार करोगे तो सारे काम अच्छे कर पाओगे। तो now after speaking about the taqwa, again coming back to the development of our personality, के अगर कभी गलती से काम कर लो, तकवा वाले हो भाई, मुत्तकी हो, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह हम बुरे काम नहीं करेंगे। लेकिन है तो इंसान ही, तो हो सकता है हमसे बुरे काम हो जाए, बिकॉज हम तो है ही इंसान, गलतियों का पुतला, तो इंसान से गलती हो सकती है। तो अगर गलती हो जाओ तो इमीडिएटली गुड कर लो। फॉलो अप अ बैड डीड विद अ गुड डीड। अगेन ये भी इतना ब्रॉड टॉपिक है कि इसके ऊपर इतना डिस्कशन हो सकता है, बट आई हैव ओनली लिमिटेड टाइम हियर, अनदर 10-15 minutes I have, और मुझे 2 टॉपिक्स कंप्लीट करनी है, but inshallah I'll try to manage as far as possible. तो बुरे, जब अगर इंसान कभी बुराई कर ले तो इमीडिएटली गुड डीड्स कर ले। कहा जाता है कि जब आप कभी बुरा काम कर लेते हो तो किरामुल कातिबीन लिख लेते, किरामुल कातिबीन अपना पेन रखते हैं, लिखते नहीं है, इमीडिएटली नहीं लिखते हैं, वो रोक के रखते हैं, कुछ वक्त तक रोक के रखते हैं। और अगर हम इमीडिएटली याद आ जाए कि मैंने बहुत बुरा काम किया है ये, तो आप उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर दें कोई अच्छे काम से। इस्तगफार करें, सबसे पहले इस्तगफार करें, सिंसियर रिपेंटेंस हो, और उसके बाद आप अच्छे से अमल कर दें। लाइक आपने किसी का दिल दुखा दिया, आपने किसी का दिल दुखा दिया, आपको एकदम से स्ट्राइक हुआ, ओ मैंने तो उनका दिल दुखा दिया, दैट पर्सन हैज लेफ्ट। अगर वो पर्सन आपके सामने हो तो आप इमीडिएटली अपोलोजाइज करें, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपका दिल दुखा दिया, मेरा मतलब ये नहीं था, it was just a slip of tongue, by mistake I said this word, I have used this word, please forgive me,
तो आप उनसे डायरेक्टली माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस वो चले गए, बाद में आपको ख्याल आया अरे मैंने तो उनका दिल दुखा दिया था, अब वो तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स सबसे पहले हम रिपेंट करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और कुछ सदका और खैरात कर दें, कुछ अच्छा काम कर दें। या अल्लाह इसी नीयत से खैरात कर दें कि या अल्लाह मैंने गुनाह किया था, गलती की है, उसका दिल दुखाया है, मुझे माफ़ कर दे। तो आप खैरात करके दुआ मांगे। जब भी हम खैरात करते हैं तो दुआ मांगनी चाहिए, अच्छा काम करके दुआ मांगनी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हान तआला, वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है जब हम नेक काम करते हैं, उसके बाद में हम दुआ करते हैं तो दुआ की कबूलियत का वक्त हो। जैसे फ़र्ज नमाज हम ख़त्म करते हैं तो दुआ मांगनी चाहिए, बिकॉज अभी एक नेक काम किया है तो इसलिए दुआ मांगनी चाहिए। रोज़ा खोलते हैं तो दुआ मांगनी चाहिए, बिकॉज एक नेक काम हमने किया है। तो जब भी हम नेक काम करते हैं, सदका और खैरात करते हैं, तो फिर हमें इमीडिएटली हम दुआ मांगनी चाहिए। तो वैसे ही बुरा काम अगर किसी का दिल दुखा दिया तो इमीडिएटली हम खैरात करें और दुआ मांगे, सो इट विल वाइप इट आउट। तो बुरे चीज को फिर वो वाइप कर देती है। सो एज आई सेड, किरामल कातिबीन अभी कलम रोके रखते हैं। जब हम बुरा कर लेते हैं तो कलम रोके रखते हैं, तो इमीडिएटली हमें चाहिए कि हम उसको याद कर लें और वो उसको नेक काम कर लें, तो फिर वो लिखा नहीं जाएगा, वो बुराई नहीं लिखी जाएगी, फिर वो अच्छाई लिखी जाती है। दूसरे हदीस में आता है, इट्स अ बिग हदीस, मैं सिर्फ हाफ ऑफ द हदीस बोल रही हूँ। तो उसमें ये आता है, उसका मफहूम ये है कि अगर कोई इंसान बुरा करने का सोचा कि मैं उसको तकलीफ पहुंचाऊंगी, सो एंड सो पर्सन को मैं तकलीफ पहुंचाऊंगी, इसने मुझे तकलीफ पहुंचाया, मैं इसको तकलीफ पहुंचाती हूँ। तो अगर आपने सोचा चलो उसने मुझे नहीं तकलीफ पहुंचाई, आई एम थिंकिंग आई एम जेलस, आई हैव जेलसी फॉर दैट पर्सन, तो आई वांट टू हार्म दैट पर्सन। तो अगर मैं ये सोच लूं कि कल मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगी, तो हमारे अभी जहन में है एंड वी हैवंट डन दैट। तो अगर हम रियलाइज कर लेते हैं कि नहीं, आई शुडंट डू दैट एंड आई लीव इट, तो अल्लाह सुब्हान ताला उल्टा उसको हम नेकी में लिख देते हैं कि इस बंदे ने बुराई सोची थी लेकिन नहीं की, तो इसको नेकी में लिखो। तो वो हमारा जो ख्याल, बुरा ख्याल था, वो नेकी में बदल जाता है। जी अंडरस्टैंड? तो वो नेकी में बदल जाता है। तो बुरा ख्याल भी अगर आप सोचे और फिर रियलाइज करें कि वो बुरा है और छोड़ दे, तो वो आपके नेकी में शामिल हो जाता है कि इसने बुरा ख्याल किया लेकिन उसको मुकम्मल नहीं किया। अगर आप बुरा ख्याल करते हैं लेकिन उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, यू डोंट डू इट, यू जस्ट लीव इट, तो फिर वहां पर आपके जो बुरा ख्याल आपके आया था उसमें आपका यानी लिखा नहीं जाएगा कि इसने बुरा किया बोलकर, लिखा नहीं जाएगा, इसने बुरा ख्याल रखा बोलकर लिखा नहीं जाएगा। और जब इंसान अच्छा ख्याल करता है तो अगर वो ना भी करे तो लिखा जाता है, एक उसको एक दर्जा मिल जाता है कि इसने अच्छा ख्याल किया। और अगर अच्छा ख्याल करता है तो उसको उस हिसाब से अजर मिलता है। लेकिन सिर्फ सोचता है अच्छा ख्याल तो उसको एक सवाब, एक दर्जा मिल जाता है, एक सवाब मिल जाता है। लेकिन इंसान अगर बुरा सोचता है, करता नहीं है, तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, यानी बुराई में लिखा नहीं जाता। यू सी दिस? तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि बुरा अगर कभी कर लो तो फिर उसको अच्छे से रिप्लेस करना, अच्छे काम कर कर उसको रिप्लेस करना। बुरा अगर हमने कर लिया, किरामुल कातिबीन ने लिख लिया, तो अब क्या करें? तो फिर हम सबसे पहले क्या करें? रिपेंटेंस करें, इस्तिगफार करें। सबसे पहले इस्तिगफार करें, तौबा करें। तौबा क्या होता है? तौबा, आई एम श्योर आप सबको, मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी नोइंग कि तौबा क्या है। तौबा के 3 स्टेजेस आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 3 स्टेजेस। आपने तौबा जो किया याद करें, अपनी गलती को याद करें, मैंने ये गलती की थी। प्रेजेंट, एक्सेप्ट करें कि यस आई हैव डन इट रॉन्ग, आई हैव मेड अ मिस्टेक। और थर्ड, फ्यूचर, प्रॉमिस कि यू विल नेवर डू इट अहेड, आगे नहीं करोगे। ये तौबा के 3 स्टेजेस होते हैं।
एक ये कि पास जो कर लिया, जो बुरा काम कर लिया उसको याद करें। कई बार तो हम करके भूल भी जाते हैं, याद भी नहीं रहते हमें कितने बुरे काम किए हैं। तो इसीलिए फिर दुआएं मांगनी पड़ती है, या अल्लाह हर वो गुनाह को वो माफ कर दे जो जानबूझकर किया, अनजाने में किया। अनजाने में भी हम बहुत सारे गुनाह करते हैं, जानबूझकर फिर हमें पता होता है कौन से करें। इसीलिए जो गुनाह हम करते हैं तो याद करें कि ये गुनाह हमने किया है पास्ट में, प्रेजेंट में अल्लाह से अल्लाह इकरार करें, एक्सेप्ट करें, यस आई हैव डन दिस बैड डीड। फ्यूचर में प्रॉमिस करें आई विल नेवर रिपीट इट, आगे मैं नहीं करूंगी। तो उम्मीद करते हैं, तो वी कैन परहैप्स अल्लाह सुब्हानहू तआला विल फॉरगिव अस। तो तब हम ये कहेंगे कि मे बी अल्लाह सुब्हानहू तआला विल फॉरगिव अस। दैट इज रिपेंटेंस, सिंसियर रिपेंटेंस। अपने आंखों से आंसू झलके ऐसा रिपेंटेंस कि यार रब मैंने वाकई में ये गुनाह किया, मुझे माफ कर दे। उसके बाद इस्तिग़फ़ार पढ़ें, सीकिंग रिफ्यूज विद अल्लाह सुब्हानहू तआला। इस्तिग़फ़ार पढ़ें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये गुनाहों से मुझे बरी कर दे। गुड डीड्स इरेसेस इविल डीड्स, सूरह हूद की आयत नंबर 114। Establish worship at the two ends of the day and in some watches of the night and some time of the night. That is tawheed, that is the tajweed. Astaghfirullah. What is that? Oh, la hawla wala quwwata illa billah. tahajjud time. Tahajjud. Yes, yes, jazakallah khair. Okay, sorry. So establish Surah Hud, ayat number 114. Establish worship at the two ends of the day and in some time of the night, that is the tahajjud time. Verily good deeds annul evil deeds. तो बेशक अच्छे कामों को, हमारे अच्छे अमल बुरे अमल को दूर कर देता है। अन्यूल मिटा देता है, हमारे अच्छे अमल बुरे अमल को मिटा देता है। तो तहज्जुद जब हम पढ़ते हैं, नेक काम जब हम करते हैं, तो उम्मीद है कि हमारे बुरे काम, हमारे जो अमल नामे हैं उनमें से मिट जाएंगे। तो अगर इंसान बुरा था, पहले बुरा था, जैसे अब आप और हम सब उसी स्टेज से गुजर रहे हैं। पहले हमारा ईमान नहीं था, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं जानते थे, हम दुनिया के हिसाब से चलते थे, बहुत सारे गुनाह करते थे, हमें पता भी नहीं होता था कि वो इतने सारे गुनाह हम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, हम अब नेक काम करते जाएं, हर नेक काम करते जाएं, इस उम्मीद पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बुरे कामों को मिटा दे, अन्यूल कर दे, मिटा दे, हमारे बुरे कामों को मिटा दे, बुरे डीड्स को मिटा दे। इन्नल हसनाती युज़हिबना सय्याती, इन्नल हसनाती युज़हिबना सय्याती। इसी आयत नंबर 114 में है। बेशक अल हसनात द गुड, एहसन काम, इन्नल हसनाती युज़हिबना टेक अवे, ज़हबा टेक अवे चला गया, ज़हबा चला जाता है ना, ज़हबा इज गॉन, लेफ्ट, वेंट, तो वो चला जाए, अन्यूल हट जाए। युज़हिबना सय्याती, सय्याती दैट इज बुराइयों को लेके चले जाए। ऑल द सय्यात इज द प्लूरल फॉर्म, सारे बुराइयों को लेकर चले जाए। तो सारे अच्छाइयाँ, अल हसनात इज आल्सो प्लूरल, सारे अच्छाइयाँ बुराइयों को लेकर चले जाए, चला जाए। यज़हब चला गया, वापस आने की बात नहीं हो रही, जाने की बात हो रही। यज़हब चला गया, तो अच्छे काम बुरे कामों को लेकर चले जाए। तो उम्मीद है कि हम अच्छे काम करते जाएं, तो हमारे जो रिकॉर्ड में जो बुरे काम थे वो धुलते जाए, मिट जाए, चला जाए वहां से, रिकॉर्ड से। मगफिरत फॉर डिजीज, और जो गुजर जाते हैं उनके लिए दुआएं मांगे ताकि उनके गुनाह भी माफ होते जाएं। हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन, और तो हमारा काम है कि हमारे पेरेंट्स के लिए हम दुआएं मांगे ताकि उनके गुनाह दूर होते जाएं। Afflictions in this life. Yes, we have daily dose of Islam. So who will continue with this? Samira should have taken this class because थोड़ा बाकी रहता है। समीरा नहीं है ना?
Yes, Dr. Nasreen, nahi hai Sameer. है, but then she's not raised the meeting. I think it's Host not नहीं किया. possible now to hand over, is it? Do you want her to create, Samira, is it possible for you to host a meeting now? No, no, it's okay. I'll end up. Just 10 minutes, not even 10 minutes, 5 minutes I will end up. It's okay. Next time onwards in the screen हम यही करते हैं कि हदीस की class let Samira No send the problem. link. No problem. 10-15 minutes extra हो जाए because you have a class now. Yeah, I just have to So create a link because recording is the I cannot yes, go there. I know. Just give me 5 minutes. I will wind up. Okay. तो जो गुजर जाते हैं हमारे बुजुर्ग जो गुजर गए हैं उनके लिए हम दुआएं मांगे ताकि उनके बुराइयां मिट जाए और जितने भी तकलीफ हम सहते हैं इस दुनिया में एक कांटा भी चुभ जाता है हमें तो उससे भी हमारे बुराइयां झड़ जाते हैं तो whatever difficulties we are facing इमोशनल हो फिजिकल हो जो जिस किस्म की भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तकलीफ से हम गुजर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को माफ करते जाते हैं सो वी शुड बी हैप्पी कि अल्लाह खुद अपने आप को हाथ काट कर ना बोलना कि आई एम गोइंग थ्रू पेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल फॉरगिव मी नो द पेन एफ्लिक्शंस which comes directly from अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देते हैं तो तब उसके गुनाह झाड़ते हैं आप एक कांटे को लेकर अपने आप को छुपा कर मत कहना कि मेरे गुनाह झड़ जा रहे हैं नो जो ऑटोमेटिक जो खुद से हो जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होते हैं तो तब जाकर हमारे गुनाह माफ होते हैं और नेक्स्ट इज द इंटरसेशन ऑफ रसूल सल्लम तो जब रसूल सल्लम आखिरत में हमारे लिए सिफारिश करेंगे तो हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हम पर रहम करेंगे और बिना हिसाब किताब के हमें कह देंगे जाओ जन्नत चले जाओ ये मुत्तकी के साथ होगा कि बिना हिसाब किताब के अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि जाओ जन्नत चले जाओ मेरे बंदे जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ तो इसीलिए हमें मुत्तकी होनी चाहिए तो बैड डीड्स with a good deeds replace all your bad deeds with a good deed and the third is to behave towards the people with a good behavior again jab hum husn al khuluq ata kare the best nature हमारे मैनरिज्म में हम अच्छे be honest and be polite be calm रेस्पेक्ट दें बड़े लोगों को रेस्पेक्ट दें छोटों को शफकत से मोहब्बत से पेश आए बी गुड विद द पीपल केयर फॉर द पीपल इसके ऊपर भी हम हदीस कर चुके हैं व्हाट यू लव फॉर योरसेल्फ गिव अपने मुसलमान भाई बहनों के साथ उस तरीके से पेश आना जिस तरीके से आप चाहते हो कि वो आपके साथ पेश आए एंड व्हाट यू लव फॉर योरसेल्फ लव द सेम फॉर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम तो ये सारी चीजें हुस्नुल खुलूक में आती हैं तो इससे भी यही फायदा है कि हम लोगों के साथ हमारे बॉन्ड्स अच्छे होते पीपल विल लव टू बी इन योर कंपनी आपको कभी परेशानी हो जाए तो दे विल बी देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू दे विल बी देयर इन योर गुड टाइम्स दे विल बी देयर इन योर बैड टाइम्स तो आप you will be surrounded with people who care for you who genuinely care for you so that's the the best benefit of husnul khuluq आपके अच्छे अखलाक आपके अखलाक बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि लोग आपके इर्द गिर्द रहे आपके अतराफ में रहें उसके बाद फिर जब लोग खुश होंगे तो ऑब्वियसली अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी खुश होंगे बिकॉज हमारे दो हुकूक है एक हुकूकुल अल्लाह और एक हुकूकुल इबाद अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करना तो जब हम हमारे नेचर अच्छे होंगे हमारे बिहेवियर अच्छा होगा हुस्नुल खुलूक होगा तो हम अल्लाह के बंदों के हुकूक जो आते हैं वो पूरे मुकम्मल करेंगे एज आई सेड हर रिश्ते के लिए हुकूक होते हैं पेरेंट्स के हुकूक अपने स्पाउस के हुकूक फ्रेंड्स के तरफ हुकूक स्ट्रेंजर्स के तरफ हुकूक स्ट्रेंजर्स को भी हमें तकलीफ नहीं पहुंचानी है चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो उसको नहीं तकलीफ पहुंचाना जानवरों को तकलीफ नहीं पहुंचाना जो हदीस हम पिछली बार कर सकते लास्ट वीक ही किए हैं जानवरों को तकलीफ नहीं पहुंचानी तो ये सारी चीजें हमें ख्याल रखना है और ये कब हो सकता है ये जब हम हुस्नुल खुलूक अडॉप्ट करें तो दैट इज जस्ट in brief I cannot go much deeper in this husnul khuluq but I hope you get an idea of what husnul khuluq is or how important that is it is associated with taqwa
जिन इंसान के साथ तकवा होगा तो अल्लाह को राजी करने के लिए वो उसके बंदों को भी राजी करेंगे। ओके, जस्ट टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम दुश्मन के साथ भी अच्छा बिहेव करते हैं, हम दुश्मन को भी फॉरगिव कर देते हैं। दैट इज हुस्न खुलुक, दुश्मन को भी माफ कर देना, ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज कि अगर आप लोगों को माफ कर दो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको माफ कर देंगे। तो और हदीस में आता है एक बंदा जिसके दिल में राय दाने बराबर भी, सीड, मस्टर्ड सीड के उतना राय दाने बराबर भी हसद, जलन, बोझ, दुश्मनी कुछ ना हो, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जन्नत नसीब करते हैं, उसको जन्नत देते हैं। तो फिर why do we want to lose our Jannah just for the sake of enmity and hatred towards somebody, jealousy towards somebody? So let it go. ये हुस्न खुल्क में शामिल आता है कि you are let all these negative things go from yourself. और कब कौन कर सकता है? ये सिर्फ एक मुत्तकी कर सकता है। अल्लाह की मोहब्बत में, जन्नत पाने की ख्वाहिश में तो दुश्मन को भी माफ कर दे, सिर्फ एक मुत्तकी कर सकता है। दैट इज द हुस्न खुल्क, उसके अंदर इतना हुस्न है, उसके बिहेवियर इतना अच्छा बिहेवियर है कि वो दुश्मन को भी माफ कर देता है। Alright, so I hope you get that. Any questions, please? Be quick if there is any question. नहीं? Okay. अगर है भी तो please आप ग्रुप में डाल दें. I will look into it. All right, so with this we'll end our class today. Inshallah, next week I'm not sure whether there will be a class next week because I will be planning. अगर flight रही तो I will be planning. I will be leaving. तो booking तो है मेरी, but flight है या नहीं है I don't know. So I'm planning to travel to India, Hyderabad through Jazeera Airways. So if it is there, so I might be flying next Sunday. So there might not be class. Inshallah, I will inform you if I'm flying. All right, until then, take care. Subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And please do remember me in your duas for my journey. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.